Yeah, good evening. Very warm welcome. So, today we will continue our discussion from the last class. In the last classes, we discussed about basically the salient features of the Constitution, the nature of the Indian Constitution, the nature of fundamental rights as a whole, and the general organization of the Constitution. And then we dealt with Article 12 and Article 13, that is basically what is authority, what is state under the Constitution. And after that, we started with the concept of law as enshrined under Article 13. And we all know that whenever we speak about Article 12 state and Article 13 fundamental rights, the concept of judicial review itself emanates from Article 13. Article 13, Clause 2 and onwards. It means if any law, rule, by regulation, circular, ordinance is made by any authority and it infringes upon any of the rights given under Part 3, it can be struck down, it can be declared null and void by using the power under Article 13, Clause 2. As we all know that the power of judicial review, basically we can see in history it started from Marbury versus Madison, 18th century case from US. There this practice started, but it was not clearly explicitly given under their constitution. After the 4th Amendment, 6th Amendment and so on, then they have it. But in our constitution under Article 13, it is clearly given. After explaining Article 12, what are the states giving different, as we have discussed different cases. What is state, what is the authority, what are the tests, whether court are state or not, whether CISR is state or not, whether panchayats and pradhans are state or not. So we have discussed many things. And if any rule regulation comes out from there, it should also pass the test of fundamental right. If it is not passing, it will be struck down as per Article 13. This is the concept of judicial review. Is it okay? अब हम आते हैं आगे. तो अभी तक हमने पढ़ा नकुल, यहाँ तक क्लियर है नकुल? जी सर. सर पर सर वो जो कोर्ट थी वो जुडिशियल वो स्टेट में नहीं है, तो उसको बात रह गई थी थोड़ी. वो बात रह गई थी, तो उसमें मैंने दो केसेस बताए थे, जिसमें एक में कहा था नहीं, अगले में कहा था कि हाँ. हाँ सर. दो केस डिस्कस किए थे ना, एक कोई एन से कोई केस था, दूसरा AR अंतुले वाला केस था. नरेश वर्सेस हाँ, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, वहां कुछ कहा गया था, फिर उसका बिल्कुल उल्टा कहा गया AR अंतुले, अब्दुल रहमान अंतुले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कुछ और कहा गया. और सिरवई साहब का कमेंट और टिप्पणी बिल्कुल अलग है कि स्टेट को, कोर्ट को भी इंक्लूड होना चाहिए. ठीक है, तो डिफरिंग व्यूज मैंने आपको बता दी. और फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे जूरिस्ट्स हैं, हमने उनका भी व्यू आपके सामने रख दिया. एंड नथिंग इज फाइनल नकुल. सर हाँ जी सर नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोर्ट स्टेट हो जाएगी तो आर्टिकल 32 के अंदर वो हाई कोर्ट को रिट इशू नहीं कर सकती. हाँ, यही कहा था, बिल्कुल यही कहा था. तो मतलब पूरी तरीके से स्टेट नहीं माना ना. तो सर इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें ये कहना चाह रहा है, देखो इसमें ये कि ऐसा है कि इन चीजों में डाइवर्जिंग व्यूज आते हैं टाइम एंड अगेन. एज पर द नेसेसिटी चीजें चेंज होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन जजमेंट, इट कैन चेंज. So as per the fact and circumstance, they can change their view. ठीक है, because interpretation का power it is always with the Supreme Court. And सबसे बड़ा bias होता है conflict of interest. जब आप खुद ही पार्टी हैं, अब यही बात हो रही है कि कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि नहीं एप्लीकेबल होगा रिट, तो कोर्ट तो खुद पार्टी है ना अपने आप में. जब कोर्ट खुद पार्टी है तो कोर्ट खुद ही फैसला कैसे कर रही है कि मेरे ऊपर आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा. आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अगर अपने मैटर में ये तो पोस्टुलेट्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बात जाती है, बट क्या करेंगे, इंटरप्रेटर तो कोर्ट ही है आपका. तो कोर्ट जरूरत के हिसाब से टाइम एंड अगेन वो चेंज करते रहते हैं. और एक इसमें कोर्ट है जस्टिस कार्डोजो का कि ऑल द थिंग्स विच अफेक्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, they won't go away, they won't turn their tide and go away from the judges,
तो जजेस भी इन चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो एज पर द रिक्वायरमेंट वो सारी चीजें फिर इंटरप्रिटेशन थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। ठीक है। यस सर। क्योंकि हमारे साथ क्या इशू है कि हम बहुत ज्यादा वी आर नॉट इनटू इंटरप्रिटेशन राइट नाउ एट योर लेवल, एट BLLB initial levels. Other students are also here. If we will go on interpreting only one case in so much detail, then it's very difficult for us. We should have certain basic postulates which should be clear, and furthermore, after the syllabus is done, we get time, we will discuss over there, because law is not certain. There is nothing like Okay, it is sir. not like science. A plus B the whole square is equal to A square plus B square Yes, plus sir. 2AB. It is not always like that in law. जी, जी, जी। जेरोम फ्रैंक ने कहा है कि लीगल सर्टेनिटी इज अ मिथ। तो अंतुल्य साहब में कुछ कहेंगे, उसमें कुछ कहेंगे। अब वो जो अटेम्प्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अटेम्प्ट वाले केस में मोहम्मद याकूब वर्सेस Yes, sir. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, फिर एक केस था स्टेट ऑफ पंजाब के अगेंस्ट मलकियत सिंह वाला। तो आप देखते हैं कि कैसे कैसे फैक्ट भी सेम, जजमेंट अलग आते हैं। तो देयर आर मेनी रीजंस and many times circumstances are different, many things are there, because even if everything is similar, no two cases are similar. है कि नहीं? सब कुछ भी एक हाँ होता है, बट नो टू केसेस आर एग्जैक्टली सिमिलर। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो अब हम यहाँ तक जब हमने कर लिया, तो अब ये यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि स्टेट क्या है। तो वी डिस्कस सर्टन केस लॉज। अब वो केस लॉज में क्या लिखा हूँ, नरेश वर्सेस स्टेट है कोर्ट के बारे में। उसके बाद AR अंतुले वाला केस है कोर्ट के बारे में। उससे अगर पहले जाए तो मैंने 2-3 केसेस आपको लिखवाए थे। Yes, sir. यहाँ मैंने टाइप नहीं किया है, बट वो 2-3 केसेस मैंने लिखवाए थे जहाँ पे कहीं डिक्लेयर किया है कि CSIR जो है वो स्टेट है, फलाना ऑर्गेनाइजेशन स्टेट है, DRDO स्टेट है। तो ऐसे 2-3 केस आपको याद करने हैं जहाँ पे बताया गया है कि वो स्टेट है, और आपको फंक्शनैलिटी टेस्ट वगैरह के बारे में बता देना है जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर स्टेट, बट यू हैव टू मेंशन अबाउट आर्टिकल 13 ओवर देयर, आर्टिकल 12 ओवर देयर। फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 को भी हमने डिस्कस किया था कि लॉ क्या है, जिसमें लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया हुआ, स्टेट के एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं, अब उसमें आपका एक्ट्स आ जाते हैं, नोटिस, ऑर्डिनेंसेस, सर्कुलर्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज, ये सारी चीज़ें आती हैं। मैं एग्जांपल दे दे कि वी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ लॉ होती हैं। तो अगर स्टेट लॉ बनाता है या स्टेट बाय लॉ बनाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा, और ये जो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं मैंने आपको कि आर्मी चीफ जो है, पुलिस जो है, CBSE, CSIR, सबको स्टेट बताया है। फंक्शनैलिटी टेस्ट है इनका, अपॉइंटमेंट का टेस्ट है, फंडिंग का टेस्ट है, अलग अलग वक्त पे अलग अलग टेस्ट निकाले हैं इन्होंने स्टेट को डिफाइन करने के लिए। क्योंकि मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में स्टेट का काम सिवाय एक पुलिस स्टेट के अलावा, पहले क्या था, पुलिस स्टेट होता था कि भाई आपको थोड़ी बहुत आंतरिक सुरक्षा देनी है और अपनी सरहदों की जो है हिफाजत करनी है, बाकी आप कमाएं खाएं मरें जिए, उससे कोई स्टेट को मतलब बाय एंड लार्ज उतना ज्यादा नहीं होता। बट आज की स्टेट क्या है, वो वेलफेयर स्टेट बनना चाहती हैं अपने आप को। भाई जितने इलेक्शन होते हैं पार्टी वो यही तो कहती है कि हम आपको एक बेहतर जीवन देंगे। Yes, sir. तो एक नाइट वॉचमैन स्टेट से हम आगे बढ़ के वेलफेयर स्टेट की तरफ आ चुके हैं। तो जब वेलफेयर स्टेट की बात होती है तो उसके फंक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। अब फिर आज के दौर में अब पासपोर्ट आप बनवाने जाएं तो वो टिस वालों को, टाटा वालों को दिया हुआ है बेसिकली, बहुत सा काम इनिशियल स्टेजेस पे। तो अब कुछ काम अगर सॉवरेन फंक्शंस हैं, किसी प्राइवेट को भी आप दे रहे हो, उसकी मोनोपोली हो जाती है, तो वो भी स्टेट का रूप धारण कर लेता है कई दफा। क्यों? तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। Yes, sir. तो अब यहाँ पे यही इसीलिए हमने बताया फंडामेंटल राइट पढ़ाया जाता है। फिर कहा जाता है आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 जो है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ओबीजे से भी रिमीडियम, विदाउट रेमेडी देयर इज नो राइट। अगर आपके पास कोई हित है, कोई अधिकार है,
और उन अधिकारों का यदि हनन होता है तो उनके बचाव के लिए अगर कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है तो वो अधिकार किसी काम की नहीं है। यदि मेरी किसी अधिकार का हनन होता है या आपके किसी राइट का वायलेशन होता है तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जिसके जरिए आप जाके उसका रिड्रेसल कराएं, है कि नहीं? जैसे आपने टॉर्ट में केस पढ़ा भीम सिंह वाला, भीम सिंह साहब को इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ने वोट नहीं डालने दिया, हालांकि उनकी पार्टी जीत गई, फिर भी उनको 50,000 रुपए का कंपनसेशन मिला। भीम सिंह स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 1986 का केस है, 87 का सपोज 86 का केस, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उनकी राइट इन्फ्रिंज हुई। जब अगर राइट है तो उसके लिए रेमेडी होनी चाहिए। उसी तरीके से जब फंडामेंटल राइट दे दी तो अगर उनका वायलेशन होता है तो उसके लिए रेमेडी दी गई कि नहीं दी गई? बिल्कुल दी गई। अब इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। फंडामेंटल राइट किसके लिए है? पब्लिक के लिए। बेसिकली इट इज फॉर द सिटीजन, नागरिकों के लिए। अब नागरिकों के अगर किसी हित का उल्लंघन होता है, राइट्स का वायलेशन होता है, तो वो सीधे सीधे कहां जाएंगे? कौन करेगा वायलेशन माना जाता है? स्टेट। और कई दफा अगर वायलेशन कोई नॉर्मल आदमी भी करता है, बट ये माना जाता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट वायलेशन ऑफ वन सिटीजन फ्रॉम अनदर। चंद्रिमा विश्वास वाला केस जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अब हमें स्टेट की डेफिनेशन पता लग गई, 2-4 केस लॉज पता लग गए। देखो अगर नकुल आप इंटरनल जाके रिसर्च करोगे तो उसमें कई मुद्दे निकलेंगे, डिसेंटिंग ओपिनियन निकलेगा, फिर चेंज हो रहा है, काफी चीजें आपको दिखेंगी। मोटे तौर पर मैं सिलेबस के हिसाब से आपको भी बता रहा हूँ, एक ढांचे के तौर पे मैं चीजें क्लियर स्केलेटन के तौर पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे चीज निकल के आई, स्टेट हमने पता लगा लिया क्या है एज पर आर्टिकल 13, एज पर द केस लॉज हमने पता लगा लिया। अब जब ये हमें पता लगी और हमें लॉ पता चल गया कि लॉ स्टेट बनाता है। अब अगर कोई लॉ बनाया स्टेट ने और वो लॉ फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जा रहा है, तो कोई भी सिटीजन, ग्रुप ऑफ सिटीजन उसके विरुद्ध जाएगा कोर्ट में और कोर्ट से कहेगा कि भाई एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, विधायिका का और कार्यपालिका का भारत में गठजोड़ है, वो उसका पार्ट है, लेजिस्लेचर का पार्ट है एग्जीक्यूटिव यहाँ पे, है कि नहीं? भाई जितने हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं लोकसभा के मेंबर होते हैं कि नहीं होते? किसी को छोड़ के राज्यसभा का अगर कोई हो तो सारे मेंबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इन्होंने कोई लॉ बनाया, स्टेट ने लॉ बनाया, और वो लॉ क्या क्या है, हमने आपको 5-6 टॉप बता दी क्या क्या है, और वो लॉ अगर इन्फ्रिंज कर रहा है आपकी फंडामेंटल राइट को, तो कोर्ट इनको इंटरप्रेट करेगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा एज पर आर्टिकल 13। इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? दोबारा नजरसानी करना, दोबारा दृष्टि डालना किसी चीज के ऊपर। कोर्ट अपनी दृष्टि डालेगा, अपनी नजरसानी करेगा, दोबारा देखेगा और ये चीज देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्ट 3 का उल्लंघन कर रहा है। अगर पार्ट 3 का उल्लंघन करेगा कोई भी स्टेट मेड लॉ, लॉ स्टेट ही बनाता है या उसके ऑर्गन ही बनाते हैं, चाहे डेलीगेटेड हो चाहे डायरेक्टली हो, उसको वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा आर्टिकल 13 में। इसी चीज को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। एंड जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है लेकिन बेसिक फीचर में संशोधन नहीं हो सकता, और जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको समझ में शिवानी, आपको समझ में आया जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? यस सर। क्या होता है शिवानी जुडिशियल रिव्यू? सर दोबारा वो मतलब नजर करना उस पे। किस चीज पे? कोई बात नहीं शिवानी, मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मानिए मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ, ठीक, मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ फॉर एग्जांपल, या आप मान के चलें CAA एक्ट पास हुआ, पार्लियामेंट ने पास कर दिया। अब ये कोर्ट के पास जाता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मान लो कि हमारा पार्ट 3 वायलेट हो रहा है, कोर्ट के पास चलेंगे तो कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा, सारी चीजों को एग्जामिन करने के बाद अगर कोर्ट को ये लगता है कि कहीं पर भी पार्ट 3 का वायलेशन नहीं हो रहा तो वो अपहेल्ड कर देगा कानून को कि ये कानून मोटर व्हीकल का या CAA का ये कानून ठीक है, ठीक। और अगर कोर्ट को ये फील हुआ कि ये कानून जो आया है, जो स्टेट ने अपना आर्टिकल 13 का पावर यूज करते हुए, आर्टिकल 12 का पावर यूज करते हुए जो स्टेट ने कानून बनाया है,
अगर उनको ये लगता है कि ये वायलेशन हो रहा है पार्ट 3 का, पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट यानी कि 12 से 35 तक जो राइट्स दी गई हैं उसमें समता का अधिकार है, राइट टू इक्वेलिटी, यस उसमें राइट टू फ्रीडम है, ठीक। यस सर, अब राइट टू फ्रीडम Yes, को क्या कहेंगे हिंदी में? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट जी एक्सप्लॉयटेशन, सर शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम Yes, ऑफ sir. रिलीजन है, धार्मिक आजादी का अधिकार, Yes, sir. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि आर्टिकल 32 वगैरह, ठीक है। ये सारी राइटों में से Yes, sir. किसी भी राइट का, चाहे वो समता के अधिकार का वायलेशन हो रहा हो, चाहे फ्रीडम का वायलेशन हो रहा हो, चाहे धार्मिक आजादी का वायलेशन हो रहा हो, कल्चर का वायलेशन हो रहा हो, कुछ भी वायलेशन होता है किसी पर्टिकुलर कानून से जो कि स्टेट ने आर्टिकल 12 में जो स्टेट है उसने आर्टिकल 13 के तहत बनाया है, उसको ये डिक्लेयर कर देगा आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2। आप इसे रीड आउट करिए, मैं आपके लिए रीड आउट करता हूं एक बार, ठीक है। मैं स्क्रीन पे दिखा दूं या रीड कर दूं? स्क्रीन पे दिखाऊंगा टाइम खराब Yes, हो। sir. आप सब अपना अपना बेर एक्ट खोलिए हाँ सर रीड कर दीजिए। और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 देखिए। द Yes, sir. स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, मतलब राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, जो ले लेता है अधिकारों को या उसका हनन करता है जो कि इस पार्ट में, पार्ट 3 में 12 से 35 में दिए गए हैं। एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज, और कोई भी कानून जो इस क्लॉज के विरुद्ध बनाया गया है, इट शैल बी टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन बी वॉइड, तो जिस एक्सटेंट तक वो उसके विरुद्ध है, उसके खिलाफ जा रहा है, वो वॉइड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब सीएए का या मोटर व्हीकल का Yes, कोई एक मामला कहीं गलत है तो सिर्फ उसको किया जाएगा, पूरे को ही नहीं किया जाएगा, जब तक कि पूरे Yes, ही गलत ना हो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उस हद तक सिर्फ। अब Yes, आगे, sir. फिर आगे इन्होंने बता दिया कि लॉ क्या क्या है। मैंने जो पहले आपको हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, ये वो सारी चीजें। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू, मतलब रिव्यू ऑफ एनी लॉ बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। और ये कहां से आया है? केस Review. आपके सामने है। अब मैं यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। लिखे द, Sir. अब आपको शिवानी अब क्लियर हुआ कि क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? यस सर। बताइए, अपने अपने लैंग्वेज में बताइए शिवानी। सर मतलब ऐसे कि अगर हम कि कोई मतलब पार्लियामेंट वगैरह कोई लॉ पास कर रही है, लेकिन अगर उस लॉ से मतलब वो फंडामेंटल राइट किसी के अगर वो हो रहे हैं, किसी को मतलब ऐसा हो रहा है कि उनके राइट का वो हो रहा है, मतलब क्या कहते हैं, हनन हो रहा है। हाँ हनन हो रहा है, तो उस पर फिर से वो की जाएगी लॉ के ऊपर फिर से कि किसी वेरी का गुड। कुछ ऐसे और वो क्या देखेगा कोर्ट? कोर्ट ये देखेगा कि जो पार्ट 3 में जो राइट्स दी गई हैं, जो हमारे सामने 5-6 राइट हैं, ये कहीं Yes, sir. इनका तो नहीं मतलब वायलेशन हो रहा है, इनके वायलेशन पे उसको फिर वो नल एंड वॉइड निरस्त कर देगा कोर्ट। इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो मैं जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन दिखा रहा हूँ आपको। केस लॉ मैंने आपसे पहले डिस्कस कर दिया था। ये शुरुआत हुई है आपके मार्बरी वर्सन मेडिसन से। ये यूएस की कहानी थी और ये 18th सेंचुरी की बात है, आज की बात नहीं, 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस चीज को। लेकिन इनके वहां कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, हमारे वहां कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन डाला गया है जुडिशियल रिव्यू का, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1949-1950 में बना है। इनके वहां तो बहुत पहले से, 200-300 साल पहले से चल रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप लोगों को पहले ही पीडीएफ मिला था तो फिर पीडीएफ मिल जाएगा, फिर भी नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, अदरवाइज पीडीएफ तो मिलेगा ही आपको। क्योंकि अगर आप साथ साथ लिखते रहेंगे पॉइंट्स वगैरह तो आप उसमें अपनी लैंग्वेज में Yes, लिखेंगे जो समझ में आ रहा है, तो दैट विल बिकम मोर प्रिसाइज एंड इजी। Yes, sir. द जुडिशियल, क्या कहेंगे, द जुडिशियल स्क्रूटनी, scrutiny by laws made by state that whether they infringe, the judicial scrutiny by laws made by state that whether they infringe part 3 that is fundamental rights, and if so, they are
declared to be void is known as judicial review. अच्छा, कोई भी कानून बनता है, जैसे अभी ये फार्मर्स वाला बिल बना या कुछ बना, तो ये सब लोग क्यों कहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे? वो कोर्ट जाके ये कहना चाहते हैं कि वायलेशन हो रहा है, इस बिना पे वो जाना चाहते हैं कहने के लिए. तो द जुडिशियल स्क्रूटनी. जैसे ये जो कानून बने सर, ये यस सर. सर जैसे ये फार्मर एक्ट बनाया, सीए या मोटर व्हीकल एक्ट, तो सर जब ये चले नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सर ये आर्टिकल 132 के अंदर होंगे सर, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में अपीलेट या किस में होंगे? हाँ, किस आर्टिकल? फंडामेंटल राइट का जैसे ही वायलेशन होता है ना, आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, अब वो कह रहे हैं कि हमारा वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 14 का. मान लो कि वो कहते हैं आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, या कोई कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हो रहा है, तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं. तो इनके वायलेशन के लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जा सकते हैं आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सेंटर के लॉ है तो लोग सेंटर में जाते हैं. स्टेट लॉ होगा तो फिर वो 226 में हाई कोर्ट जाएंगे. इनके लिए आप स्ट्रेट जा सकते हैं. अब जो मैंने एग्जांपल कई दफा दिया, अभी कल भी दिया था एग्जांपल, कल आप थे ना कुल वहां पे? नहीं थे कल के फंक्शन में? हाँ, तो अर्नब गोस्वामी की बेल वाली बात, अर्नब गोस्वामी की जो बेल वाली बात हो रही थी, तो उसमें ये तो हुआ था कि सेशन कोर्ट में गए और सेशन कोर्ट के साथ साथ वो सीधे चले गए सुप्रीम कोर्ट में भी हैबियस कॉर्पस के लिए. उन्होंने कहा कि राइट का वायलेशन हो रहा है. तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कोई कहता है अगर, जैसे वो सर हाई कोर्ट में कहा था कि सेशन कोर्ट में जाओ, अब वो गए. हाँ, हाई कोर्ट मतलब वैसे ही उन्होंने फाइल कर दी, पहुंच गई सीधा हाई कोर्ट. वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. हालांकि हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जाइए, और उनको ये भी इस तरीके से कह दिया था कि बेल मिल भी जाएगी. बट वो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उनके लिस्ट में 9 डिफेक्ट थे, फिर भी अगले दिन उनका नाम आ गया. इस पर भी बड़ा डिपेंड करता है कि कितने दिन बाद आपका नाम आएगा. कई दफा महीने भर बाद भी आ सकता है, तो महीने भर आपको अंदर रहना होगा. तो बहरहाल जो भी था, मैं उसकी बेल के खिलाफ हूं, बट मेरा ये मानना है लॉ थोड़ी फॉलो करता है. अब देखो, अगर अब कोई ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी की राइट का वायलेशन हो रहा है, तो कैसे माना जाएगा? अभी वही तो बात हुई ना कि कोर्ट को स्टेट नहीं मान रहे उस तरीके से. आप देख रहे हैं इस बात को, तो वो कैसे कहेंगे? नहीं सर, मैं कह रहा हूं सर, जो लॉ का प्रेसिडेंट है कि पहले इसमें ये चक्कर है कि जनरली जितने लोग भी बंद हैं, चलो यूएपीए को हटा दो, कहीं पर भी ऐसी बात होती है. तो जैसे हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि आपको अगर पकड़ा गया है, तो नॉर्मली जो भी पकड़ा जाता है किसी भी क्राइम में, उसके ऊपर चार्ज जो भी लगाया गया, एफआईआर की गई है, इवन की एंटिसिपेटरी केस में, तो वो जाता है सेशन कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, उसको बेल मिल जाती है. और कहा भी हाई कोर्ट ने कि चले जाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रताड़ना का मामला है और इसमें राइट टू लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक तरीके से अच्छी बात है, लेकिन चक्कर ये है कि सिटीजन की जब लिबर्टी की बात हो रही है, तो ये तो बहुत अमीर रसूख वाला आदमी है. तो जो लोग उतने रसूख वाले नहीं हैं, उनको एक हफ्ते में नहीं तो कम से कम 4, 6, 8 महीने, 1 साल में तो सुन लो. ये है प्रॉब्लम. बात ये नहीं, बात तो बहुत अच्छी है अगर लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया गया, क्योंकि ये केस भी बड़ा अजीब किस्म का है. वो क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी थी, फिर क्लोजर रिपोर्ट खुलती है विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट थ्रू अ मिनिस्ट्री. लेकिन चलो ठीक है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में फिर भी जस्टिफाइड थे, तो बेल तो मिल ही जाती लोअर कोर्ट से. बट इतना फास्ट सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट जस्टिस दिया, दैट इज ऑल्सो गुड. बट ये चीज नजर नहीं आती दूसरे लोगों में. फिर रोस्टर सिस्टम बड़ा अजीब सा सिस्टम है. तो ये सारी चीजें हैं. तो यहाँ पे अब मैंने आपको क्या बताया कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है. और जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर. क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर. अब आप चाहे इसमें कई केस लॉज देख लो, चाहे आपका ये इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, जिस केस के बाद इमरजेंसी लगी थी, इसमें भी कहा गया था कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर. फिर चाहे आगे जाके आप मिनर्वा मिल्स का केस ले लो, 1980, इन सब में कहा है कि जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये मैंने आपको कुछ केस लॉज बताए थे कि जहाँ पे बस एक सेकंड नकुल, मैं ये बात पूरी कर लूं, फिर मैं आ रहा हूँ उस पर. फिर मैंने आपको, अब जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बता दिया, बात क्लियर हुई आपको. अब अमेंडमेंट से रिलेटेड हम अमेंडमेंट में कवर करेंगे, बड़ा टेढ़ा मसला है वो. अब हम आ रहे हैं आगे. मैंने आपको ये बताया था कि स्टेट कौन कौन से, तो उसके लिए केस लॉज बता दिए कि किस केस लॉ में क्या हेल्ड किया गया. ठीक है,
एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। ओके सर। हेलो क्या हेलो, उठना मत जब मैं स्विच ऑफ करूं कैमरा तब उठना। दूध आ गया अचानक से। एक ही स्पून कुछ कम करो यार, बहुत ज्यादा। हाँ मैं कैमरा भी ऑफ करूंगा तो तुम यहाँ आ जाओ। यहाँ लग रही तुम, मैं कैमरा ऑफ करूंगा। तो क्या करूं यार इनको? दो हेलो नकुल, यस सर। बस 2 मिनट का गैप दो, जाना मत तुम लोग, ठीक है? सिर्फ 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। ओके सर, ओके सर। हेलो, यस सर। ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? यस सर। हाँ बस हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सर फंडा वो सर क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ हम बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मिनर्वा मिल्स का केस। हाँ सर और वो सर राजनारायण का केस। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का जो केस था, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को, जिससे वो पार्लियामेंट इलेक्शन जीती थी, उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि गलत तरीके से हुआ, तो नल एंड वॉइड। उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। तो उसमें भी ये कहा गया था कि रूल ऑफ लॉ जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको बदला नहीं जा सकता। क्योंकि बाद में ये अमेंडमेंट ला रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को, स्पीकर के इलेक्शन को, कोई ये दोनों चीजें कोर्ट में नहीं आएंगी, तो ये सब चीजें नहीं मानी गई, तो मिनर्वा मिल का केस आ गया, ठीक है। तो यस, तो मिनर्वा मिल्स का केस आ गया। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारा आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है, स्टेट क्या है और लॉ क्या है और जुडिशियल रिव्यू क्या है, और हमारी कितने टाइप्स की फंडामेंटल राइट है। मोटे तौर पे 6 टाइप की फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये 6 प्रकार की हमारी फंडामेंटल राइट है। जुडिशियल रिव्यू की शुरुआत कहाँ से हुई? यूएस से शुरुआत हुई, मैरबरी वर्सेस मेडिसन के केस में। 18वीं शताब्दी का केस है, 1793 के आसपास का। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जुडिशियल रिव्यू का क्लॉज क्या है? आर्टिकल 13 यस सर। सब क्लॉज 2। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 ये जुडिशियल रिव्यू को एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है। जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया, जुडिशियल रिव्यू मैंने बता दिया। अब ये जो बात थी कि स्टेट क्या क्या है, स्टेट की डेफिनेशन के लिए आपको आर्टिकल 12 में जाना पड़ेगा।
डेफिनेशन ऑफ स्टेट यस सर। आपको मिलेगी आर्टिकल, हमने इसके बारे में लंबा चौड़ा डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। फिर कुछ केस लॉज है जहाँ पे कहा गया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अथॉरिटी है, LIC भी अथॉरिटी है। फिर हमने कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ा, कंट्रोल कौन करता है, फंड कौन देता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, निकालता कौन है, मोनोपोली तो नहीं है। अब अगर रिलायंस को ही पूरी मोनोपोली दे दी जाए पेट्रोल की और इसकी पूरे भारत में, और वो वायलेशन करने लगे कि फलाने को हम पेट्रोल नहीं देंगे या इतने ही रेट पे देंगे, तो वो एक मोनोपोलिस्टिक पावर है। अब तो जाना पड़ेगा ना स्टेट, उसको स्टेट मानना पड़ेगा। या कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक Yes, फंक्शन sir. कर रहा हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो ये सारे टेस्ट हैं जहां पर उनको वो माना गया है। क्या माना गया? स्टेट कैसे माना जाएगा ये स्टेट। डिसिफर करने के लिए। फिर अब कोर्ट स्टेट है कि नहीं, अब ये जो बात थी यहाँ पे, वेदर कोर्ट इज स्टेट और नॉट, ठीक बात है। तो नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का कि अगर हम मान भी लें स्टेट इसको, तो रिट नहीं आएगा, क्योंकि हम मान ही नहीं सकते कि किसको कोर्ट जो है आपको वायलेशन कर रहा है। कोर्ट ने आपके अगर डिटेंशन को ऑथोराइज कर दिया तो कर दिया, ये इन्होंने कहा है। AR अंतुले वर्सेस RS नायक में इन्होंने कहा था कि रिट इशू की जा सकती है। सिरवई साहब का भी कहना है कि कोर्ट को भी रिट इशू की जा सकती है। लेकिन अब हमें इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस वक्त। हमें मोटे तौर पे ये पता चल गया कौन कौन सी चीजें स्टेट है, कोर्ट Yes, की sir. क्या पोजीशन है, और टेस्ट कौन कौन सा अप्लाई किया गया है। क्योंकि अगर ये नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में कह दे ये स्टेट है, अगले में कह दे ये नहीं है, कुछ ना कुछ पैरामीटर बताने पड़ेंगे इनको। जैसे कि कोई डिबेट कंपटीशन भी होता है, हम कहते हैं फलाना केस जीत गया, फलाना हार गया, तो किसी न किसी तथ्य के आधार पे कहते हैं ना कि उसने सबूत अच्छे दिए, रीजनिंग अच्छे दी, कारण अच्छे बताए, Yes, sir. अच्छा एक्सप्रेशन किया, सवाल के जवाब सही से दिए, सारी चीजें होती है ना, है कि नहीं। तो इस Yes, sir. तरीके से अब हमें ये भी क्लियर हो गया कि Yes. व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज फंडामेंटल राइट, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, फ्रॉम विच पार्ट टू विच पार्ट फंडामेंटल राइट आर देयर, व्हाट इज द मैकेनिज्म टू गेट इट रिड्रेस्ड। ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। इज इट ओके? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे क्या चीज सामने आ रही है। Yes, sir. अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, जब हमने स्टेट भी समझ लिया, फंडामेंटल राइट भी समझ लिया, हमने लॉ भी समझ लिया, स्टेट केस लॉज भी पढ़ लिए, स्टेट क्या क्या है, जुडिशियल रिव्यू भी पढ़ लिया। अब हमारे लिए बात ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जुडिशियल रिव्यू तो चलो मान लेते हैं, लेकिन इसमें कई डॉक्ट्रिन है, कई डॉक्ट्रिन है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, ठीक, और एक डॉक्ट्रिन है आपकी आएगी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के अलावा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के अलावा और भी कई डॉक्ट्रिन है, मैं आपको बताता चलूं। डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है, ये कुछ डॉक्ट्रिन है। मैंने आपसे कहा ना कि पूरा का पूरा लॉ जनरली अनलॉफुल डिक्लेयर नहीं करता है कोर्ट, पूरा का पूरा लॉ अनलॉफुल डिक्लेयर नहीं करता है कोर्ट, कुछ पार्ट को डिक्लेयर करता है, बाकी पार्ट उसका चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल CAA का कोई एक पार्ट गलत है तो उसको हटा दे, कुछ ऐड कर दे, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे, बाकी को चलने देगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मोटर Yes, व्हीकल sir. का कोई प्रोविजन उनको लग रहा है तो उसको शायद वो हटा दें, बाकी को चलने देंगे। तो ये कहेंगे कि एक्लिप्स हो गया, बाकी चल गया। जैसे सूर्य ग्रहण लगता है, आधी जगह पे छाया पड़ती है, आधी जगह खाली होती है, तो जितने पे छाया पड़ रही है 13 क्लॉज 2 की, उतना गलत है, बाकी ठीक है। चलेगा, मैं आप सही है। समझे ना शिवानी, आपको Right. समझ में आई बात? Yes, sir. शिवानी, यस सर। शिवानी जैसे होता है ना, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो आधी जगह पे मतलब ब्लैक हो गया, आधा खुला हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन ने आधे ब्लैक वाले प्रोविजन को काट दिया, बाकी प्रोविजन को चलने दिया। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि वो एक प्रोविजन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि पूरा एक्ट उससे जुड़ा हुआ होता है, अगर आप उस एक प्रोविजन को हटा दें तो पूरा का पूरा मतलब ही खत्म हो जाता है, पर्पस फेल हो जाता है कि नहीं? Yes, sir. तो ऐसे केस में क्या होगा? तो इन चीजों को जवाब देने के लिए हमारे कोर्ट्स ने क्या किया है कि कई सारे डॉक्ट्रिन डेवलप करी है। अब वो डॉक्ट्रिन क्या क्या है वो डिस्कस कर लें। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कर लें। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू।
हम्म। अब यहाँ पे दो डॉक्टर निकल के आती हैं, नकुल एंड शिवानी। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू vis-a-vis vis-a-vis its extent। हम ऐसी डॉक्ट्रिन्स के जुडिशियल रिव्यू के लिए जो जो हमने और डॉक्ट्रिन डेवलप करी हैं कि जुडिशियल रिव्यू कितना होगा, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मोटे तौर पे हमारे सामने तीन है। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। वेरी गुड, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे नकुल एंड शिवानी, जब आप लोग पढ़ेंगे ना स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस 245 से लेके 253 254 तक, कि यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का अगर लॉ बनता है, उनमें आपस में क्लैश होता है तो क्या होगा, है ना ये भी? यस सर। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, सर इनको हिंदी में क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन को मतलब ट्रांसलेट करें तो मैं साइड में लिख लूँ फिर। डॉक्ट्रिन को ट्रांसलेट करें हिंदी में? मैं एक सेकंड बस यस आपको सर। एक सेकंड में बताता हूँ, एक सेकंड। मैं कल से क्या करूंगा, डिगलॉट एडिशन लेके बैठूंगा शिवानी, ऐसा संविधान लेके बैठूंगा जो इंग्लिश और हिंदी साथ साथ लिखा हुआ है। ओके सर। मेरा वो देखो, मोबाइल है क्या यहाँ पे? हाँ ये रहा, मिल गया, एक सेकंड। शिवानी, आप पेपर हिंदी में लिखती हैं इंग्लिश में लिखती हैं? सर हिंदी में। अच्छा, बस एक सेकंड शिवानी। सिद्धांत, डॉक्ट्रिन को क्या कहते हैं? सिद्धांत। डॉक्ट्रिन को कहते हैं सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए, प्राथव्यय का सिद्धांत इसको कहते हैं। ये जो है आपका, ये है आपका सेकंड वाला सर? हाँ, सेकंड वाला। पार्थव्यय का सिद्धांत, पार्थव्यय का सिद्धांत, हिंदी में इसको लिखेंगे पार्थव्यय का। अब यहाँ बोर्ड होता तो फिर मैं देवनागरी में लिख देता, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे नहीं है, मैं भी वो मंगाने जा रहा हूँ, मिश्रा जी ने मंगाया है, वो लिखो तो आता है ऊपर, ठीक है। मतलब ठीक, अब आगे आइए। अब है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स।
ग्रहण का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत। सर आप बस मुझे बता दो, मैं यहाँ पे लिख लूंगी हिंदी में ऐसे ही। ठीक है, ये भी ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का है छूत, छूट 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 का सिद्धांत, छूट का सिद्धांत। ठीक, आप लिख लीजिए छूट का सिद्धांत। सर लास्ट वाला कौन सा था? वो कॉल आ गई थी मेरे फोन पे। कोई बात नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसीलिए मैं लिखता हूँ छूट का सिद्धांत। अब ठीक है, देखिए, एक्लिप्स का मतलब ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब पराथवय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का मतलब छूट का सिद्धांत। छूट का मतलब है वेव करना। वेव करने का मतलब होता है शिवानी किसी चीज को छोड़ देना, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को 5,000 रुपए उधार दिए हुए हैं, अगला आदमी पैसे देने को तैयार नहीं, उसे कोई परेशानी है, कहता है ये हो गया वो हो गया, तो मैं कहता हूँ भाई ठीक है, मैं अपने 5,000 रुपए छोड़ रहा हूँ। इसको कहते हैं वेव करना, इसे कहते हैं छूट का सिद्धांत। आया समझ? यस सर। इसी तरीके से अब एक्लिप्स की है कहानी और डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूरेबिलिटी की कहानी है। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ ये पीरियड खत्म हो रहा है, तो इसको मैं, ये खत्म होने के बाद मैं 10-15 मिनट के लिए फिर से कॉन्स्टिट्यूशन आज पढ़ाऊंगा, आईपीसी नहीं पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक मैं खत्म कर देता हूँ, एक टॉपिक तो Okay, हमारा sir. खत्म हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो आई एम स्टॉपिंग द मीटिंग राइट नाउ यस एंड सर। इमीडिएटली आफ्टर 5 to 7 minutes वी विल स्टार्ट अगेन। ज्यादा देरी के लिए 10 मिनट में, 10 मिनट में एक्लिप्स भी Yes, बता sir. दूंगा, सिवरेबिलिटी भी और वेवर भी, और सबके एक एक दो केस लाओ। इज इट ओके? Okay, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। Yes, sir.